ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप पाइए, जैसे बड़ी बात, छोटी बात, मीठी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, स्वार्थी बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। बात के काम ही इसी बात के अनेक देखने में आते हैं, जैसे प्रीति, प्रेम और दुख, लड़ाई झगड़ा, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह,
बनने में नहीं लगती। इससे ये नीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा मत कहा अर्थात नहीं कहे, चाहे यह समझे कि बात का करने का सबूत नहीं। किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले लोगों पर ही गिनने वालों हैं। इसलिए सही बात में निकलने का उत्साह नहीं होता और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने के समय को लेना ही समझते हैं और यही अच्छी बात है। तो बच्चों, ये जो लेसन आपने पढ़ा बात शीर्षक है, तो इसमें क्या है, एग्जाम में कोई एक पैराग्राफ आता है और उससे संबंधित 3 प्रश्न होते हैं। उन्हीं को आपको इस पैराग्राफ से छानकर उनके प्रश्न उनके उत्तर लिखने होते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Students, today I am going to start the new chapter which is remainder theorem and factor theorem. Okay? On this chapter I discuss the remainder theorem and factor theorem and the questions related to these 2 theorems. Now the first for remainder theorem is, firstly, the theorem is let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let A be any real number if Px is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is Pa. This is remainder theorem. Now let's see the proof of remainder theorem. Let Px be any polynomial. Px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and Qx be the quotient and Rx be the remainder. Okay? Be the remainder. Okay? We let Qx, Px is any polynomial of degree greater than or equal to 1. We know that the degree, what is the degree? Degree is the highest power of the variable in a polynomial. Okay? And Qx is the quotient and Rx be the remainder. Okay? Then if Px is divided by remainder, if Px is divided by x minus a, then students, we know that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, we know that. Now what is dividend? Px is divided by x minus a, means Px is dividend and divisor is x minus a, okay, into quotient. We know that quotient is Qx plus remainder is Rx.
Okay. Let this equation number 1. Okay. Now, students, we know that if the division is the degree of division is 1, it means the remainder is constant. Okay. If the degree is x minus 1, as we know that if this is divisor x minus a, this is px, here is qx, then we get remainder. Okay. Here the degree of divisor is 1, then if we got the remainder is constant. Okay, not Rx. We get the remainder constant means R. Okay. Now, because we know that remainder is always smaller than divisor or equal to 0. Okay. Then here R left, Rx is equals to R. Why Rx is equals to R? R is constant. This is a constant value because the degree of division is 1, x minus 1. Okay. Then we divide, we put x minus a is equals to 0, then x is equals to a. Then in equation number 1 we get p a is equals to a minus a. Okay. Here we put the value of x is equals to a in equation number 1. We get pa is equals to a minus a into q a plus r. Rx is equals to r. Then p a is equals to a means this is 0 into q a plus r. Then p a is equals to r. Okay, means pa is equals to remainder, r is remainder. Okay. Now let's see some example of remainder theorem, how to use the remainder theorem and the benefit of this theorem. Okay, with some example. Clear this theorem? The theorem is if px is divided is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number, if px is divided by a linear polynomial means degree of x is 1, then the remainder is pa. Okay. Now let's see the example. Here the question is divide px, which is a polynomial, x raised to 3 minus 3x square minus x plus 5 by gx. Okay. Firstly we solve it by simple division method, means px upon gx. Okay. Then x cube minus 3x square minus x plus 5, which is x plus 1. Okay. Now this is x minus 1, x plus 1, x cube minus 3 x square minus x plus 5. Okay. Now as we know that what will be multiplied? X square. Okay. If we multiply x square, we get x square into x is x cube. X square plus 1 is plus x square. Okay. After subtraction, the sign will be changed. It become minus. Okay. Then minus 3x square minus x square means minus 4x square. And when we copy it become minus x. Clear? Now what will be multiplied? We multiply here minus 4x. Okay. When we multiply minus 4x into x, we get minus
Okay, and minus 4x into plus 1 we get minus 4x. Okay, now after subtraction it become plus plus. Minus 4x square and plus 4x square is 0, and minus x plus 4x is 3x. Okay, now this is plus 5. Now if we multiply, here we multiply plus 3, then this is 3x plus 5. Okay, 3x, 3 into 1 is 3, this is 3. Now after subtraction, 5 minus 3 is 2, means in this case we get remainder r is 2. Okay, now if we use remainder theorem, then how we solve it? We solve it, px is equals to, okay, we have px is equals to x cube minus 3x square minus x plus 5. Px is equals to x cube minus 3x square minus x plus 3. Okay students, now x, when we divide by x plus 1, then it becomes x plus 1 is equals to 0, then x is equals to minus 1. Put this value in equation number 1. Let this equation number 1. When we put this value, then p minus 1, put minus 1 in place of x, means minus 1 whole cube minus 3 minus 1 square minus 1 plus 5. Then cube of minus 1 is minus 1 minus 3 minus minus plus 1 plus 5. Then minus 3 minus 1 is minus 4 plus 6. Okay, then we get minus 1 is equals to 2, means remainder is 2. Students, we know that by the remainder theorem, PA is remainder. Here the value of A is minus 1, means this is remainder. Then this is the use of remainder theorem. See, both the solution, here we use normal division method, we got remainder 2. Here we use remainder theorem, we get remainder 2. But this method is easy and short. Okay, this is the use of remainder theorem. Now you use only one method. Okay, let's see the next question. Students, the question is, find the value of p if the division this by, if the division of polynomial this by, this is division, okay, by x plus 3 leaves a remainder minus 22. Here the remainder is given, which is minus 22. Okay, now find the value of p. Okay, then we have px is equals to px cube plus 9x square. Okay, this is let this is fx. Okay, you can let here fx, px, gx, any number. This is 4x minus 10. Okay, divided by x plus 3. Okay, when we divide this polynomial by x plus 3, we get x plus 3 is equals to 0, x is equals to minus 3. Put the value of
by the remainder theorem. Here we use the remainder theorem. Okay, we are using remainder theorem. Then this is minus 3 and here p minus 3 plus 9 minus 3 plus 4 minus 3 minus 10. Remainder is minus 22. Remainder is minus 22 means p minus 3, f minus 3 is minus 22. Okay students, we know that if we divide x plus a, where x pa is a remainder, here we divide x plus 3, then a value of a is minus 3, then in this case minus 3 is remainder. This is remainder now. Okay, now the p cube of minus 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27. This is minus 27 plus 9. This is 9 plus this is minus 12 minus 0. Okay. Now the value of this is minus 22. This is given. Okay. Here minus 27 p plus 9 9s are 81 plus minus 12 minus 10. Okay. Now solve it. When we solve it, we get minus 22 is equals to minus 27p, and this is plus 81 minus 22. Students, minus 22 becomes 0. Okay. Now it is minus 81. Now this is 0 is equals to minus 27p plus 81. Okay. Now means 27 p is equals to 81, means p is equals to 81 upon 27. Okay. Now solve it. We get the answer which is 3. Okay. Then the value of p is 3. Now answer is 3. Okay. The next question is, find the remainder when 4x cube minus 3x square plus 14x minus 3 is divided by 2x minus 1. Okay. Now we have px is equals to 4x cube minus 12x square minus plus 14x minus 3. Okay. Now gx is equals to 2x minus 1. Okay. Here we take common 2. Then it becomes x minus 1 by 2. Clear? Now by using remainder theorem, when gx is equals to 0, when we divide the polynomial px by gx, then gx is 0, means 2x minus 1 by 2 is 0, means x minus 1 by 2 is 0. Okay, then x is equals to 1 by 2. Okay, now put the value of x is equals to 1 by 2 in equation number 1. Okay, means on, let this equation number 1, putting x is equals to 1 by 2 in equation 1, we get p 1 by 2 is equals to 4 1 by 2 whole cube minus 12 1 by 2 square plus 14 1 by 2 minus 3. Okay, here we get
x is equals to 1 by 2. Put this value here. Okay, this is remainder. We know that the value of, when we put the value of x in polynomial px, we get the remainder pa. Okay, means p 1 by 2. Okay, now solve it. This is 1 by 8 minus 12 into 1 by 4 plus this is 7 minus 3. Okay, 4 2s are 8, 1 by 2 minus this is 3 minus 3 and 7 minus 3 is plus 4. This is plus 4. Okay students, now solve it. 1 by 2 plus 1. Okay, then p 1 by 2 is equals to 2 1 plus 2. Then p 1 by 2 is equals to 3 by 2. Okay, and the answer is 3 by 2. Okay, answer means this is remainder. Okay, remainder is equals to, remainder is 3 by 2. This is answer. Hence, the remainder is 3 by 2. Okay students, that's all for today. In my next class, I will discuss the factor theorem. Okay, thank you so much. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is drainage. This chapter is related with the geography, class 9, English medium. In my previous chapter, I had already explained you the chapter Forest, Society and Colonialism. ये हिस्ट्री का चैप्टर था. हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा कि फॉरेस्ट सोसाइटी और कोलोनिज्म क्या चीज है. अब हम, ये मेरा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है ड्रेनेज. ड्रेनेज जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, किसी चीज का ड्रेन होना. ड्रेन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से कोई चीज जाती है. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम के बारे में, रिवर्स के बारे में. तो जो ड्रेनेज हमारा वर्ड है वो क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एरिया. किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मोस्टली देखते हैं कि जो हमारी रिवर्स हैं वो या तो हिमालय से या फिर पेनिनसुलर एरिया से, दो जगह से हमारी जो रिवर्स हैं वो फॉल्स करती हैं, गिरती हैं, ड्रेन करती हैं. तो रिवर्स का हिमालय से निकलना और कहाँ से होते हुए और एट लास्ट वो कहाँ पर ड्रेन करती है, जो हमारा ये पूरा रिवर सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज. इसे हम ड्रेनेज बोलते हैं कि रिवर के सिस्टम को, पूरे रिवर के सिस्टम को, उनका ओरिजिनेट और उसके बाद उसका ड्रेन, दोनों चीजें इसमें आती हैं कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पर जाकर वो ड्रेन हो रही है. तो ये जो पूरा सिस्टम है रिवर का, इस सिस्टम को हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं. तो सेकंड इज ड्रेनेज बेसिन. अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? जो भी स्ट्रीम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, मैनी स्ट्रीम्स या मैनी रिवर बॉडीज या मैनी वाटर बॉडीज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन मेक अ मेजर रिवर. दे मीट इन अ मेजर रिवर and at last drain into oceans, lakes or seas. जब अलग अलग वाटर बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन से, इज इट क्लियर कि जितनी भी वाटर बॉडीज है, मतलब डिफरेंट बॉडीज जब डिफरेंट डायरेक्शन से आकर किसी एक मेन रिवर में मिलती है, ठीक है, और फिर जो वो मेन रिवर है, एट लास्ट में जब वो मेन रिवर है वो किसी ओशन में या किसी बड़ी लेक में या सीज में जाके ड्रेन करती है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. जब वो सब एक साथ मेजर रिवर में मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. तो एक ड्रेनेज का बेसिन कहलाता है. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज वाटर डिवाइड. अब वाटर डिवाइड क्या होता है? व्हेन अ एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड एरिया होता है जैसे कि माउंटेन, जो थोड़ा सा ऊंचा एरिया, जिसको हम लोग माउंटेन भी कहते हैं. जरूरी नहीं वो पूरा माउंटेन शेप में हो, कुछ उससे कम भी होता है, लेकिन कोई भी एलिवेटेड माने ऊंचा एरिया जिसको हम बोलेंगे. तो वह ना एलिवेटेड एरिया डिवाइड टू डिफरेंट रिवर ड्रेनेज. जब कोई एलिवेटेड एरिया दो डिफरेंट रिवर के ड्रेनेज को डिवाइड करता है तो वो हमारा वाटर डिवाइड कहलाता है. तो जो एलिवेटेड एरिया है हमारा,
वो एलिवेटेड एरिया जो होता है वो हमारा वाटर डिवाइड कहलाता है, जब वो किसी ड्रेन को दो डिफरेंट उसमें डिवाइड करता है। एंड नाउ अब हम ये देखेंगे कि इंडिया में, इन इंडिया व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या है? इंडिया में कितने तरह की रिवर्स होती है, किस किस तरह की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्स, देयर ट्रिब्यूटरीज, और उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट एंड फ्रॉम वेयर दे ड्रेन, कहां से ओरिजिनेट हो रही है और कहां पर वो फॉल्स हो रही है, ये सारा हम इसमें देखेंगे। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर। इंडिया में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ब्रॉड रिलीफ फीचर से हम उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब काफी ज्यादा रिवर्स यहाँ पर है, जिसमें दे डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, इन्हें हम इसीलिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम इंडिया में देखेंगे, ये फिर पहले मैप भी यहाँ पर मैं से बताऊंगी आपको। जैसे ये मैप है, हम लोग मैप पे हमेशा बोलते हैं कि हम नॉर्थ साउथ लेके चलते हैं, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये देखिए हमारा ऊपर का पोर्शन नॉर्थ में आता है, तो हमारी हम इसको 2 पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे। तो जितनी भी हमारी ऊपर की रिवर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉर्थ का पोर्शन, नॉर्थ का मतलब ऊपर का पोर्शन, तो हमें 2 ग्रुप्स में अब ये जो है ड्रेनेज सिस्टम को इंडिया के 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट इज हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स, इन्हें हम नॉर्थ हिमालयन रेंज रिवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा हिमालय है वो हमारे नॉर्थ में है। हमने फिजिकल फीचर्स के चैप्टर में नॉर्थ में आपको हिमालय पूरा बताया हुआ है, ये हमारा पोर्शन है, ये हमारा हिमालय है। तो जो भी हमारे हिमालयन रिवर्स हैं वो इस पोर्शन से, नॉर्थ के पोर्शन से फॉल्स करती है, वहां से नीचे आती है। तो जितनी भी रिवर्स हमारी नॉर्थ से आती हैं दे आर कॉल्ड हिमालयन रिवर्स, उन्हें हम हिमालयन बोलते हैं। और सेकंड जो ग्रुप है वो है पेनिनसुलर रिवर्स का। पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है वो हमारे साउथ में होती है, और जो प्लेट्यूज से आती है, जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू या जो हमारे ये पेनिनसुलर एरिया है, पेनिनसुलर एरिया का मतलब होता है जो है अराउंड विद 3 वाटर बॉडीज। जब कोई भी 3 साइड्स वाटर बॉडीज से कवर होती है तो वो हमारा एरिया पेनिनसुलर एरिया कहलाता है। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो हमारे साउथ में है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हिमालयन रिवर्स, कि व्हाट आर द हिमालयन रिवर्स, ठीक है, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन रिवर। द फर्स्ट इज, जो हिमालयन रिवर्स होती है दे आर ऑलवेज फ्लोज थ्रू आउट द ईयर्स। ये थ्रू आउट द ईयर्स जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है, इसलिए करती है, इसलिए इनको हम लोग पेरिनियल रिवर्स भी बोलते हैं। पेरिनियल का मतलब होता है कि इनमें पानी की कमी कभी भी नहीं होती है, कभी सूखती नहीं है, और कम होता है पानी बट ये बराबर फ्लो करती रहती है। कहाँ से आती है, हिमालय से आती है। हिमालय में आपको पता है आइस होती है, स्नो होता है, और वो ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े, और जब वो मेल्ट होते हैं तो वो पानी के रूप में नीचे आते हैं। तो ये ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर्स जो होती है वो फ्लो करती है, इसलिए इनको हम पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। सेकेंड इज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द हिमालय रेंज। ये हिमालय के नॉर्थ रेंज से निकलती है, दिस पोर्शन इज हिमालय, और ये हिमालय की नॉर्थ रेंज से फ्लो करती है, ओरिजिनेट होती है। दे डेवलप अ गॉर्ज, ये बहुत बड़े बड़े गॉर्ज भी बनाती है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से आती है तेजी के साथ में फ्लो में, तो बहुत सारे इनसे गॉर्जेस भी बन जाते हैं। इसी के साथ दे लेक large amount, they take large amount of silt and sand from upper coast। इसी के साथ साथ जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो काफी जो है वो अपर कोट से आती हैं, और अपर कोट से बहुत ज्यादा से जो है क्या चीज लेकर आती है अपने साथ में, सिल्ट और सैंड। सिल्ट क्या चीज होती है, जो भी पानी के बहाव के साथ में, हम हिंदी में उसको गाद बोलते हैं, क्योंकि यही जो हमारा सिल्ट होता है ये जब हमारा नदर प्लेन में आता है तो ये हमारा क्या बनता है, एलुवियल सॉइल बन जाता है, और वही एलुवियल सॉइल जिसमें सिल्ट मिक्स होती है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा फर्टिलिटी से भरी होती है और फर्टाइल लैंड भी हो जाती है, इसलिए हमारी नदर लैंड जो होती है जिसको हम लोग नदर प्लेन भी बोलते हैं। तो क्या होती है ये जो हमारी रिवर्स हैं दे टेक लार्ज अमाउंट में सिल्ट और सैंड को अपर कोट से बाहर कर लाती है। दे आर वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबी होती है क्योंकि ये हिमालय से निकलते हुए, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी नॉर्थ रिवर्स हैं जो निकली हैं, और ये काफी ज्यादा एरिया को, जैसे ये हमारा एरिया है, ये एरिया है, मैं भी बताऊंगी, काफी से एरिया को कवर करती हुई, तो ये बहुत लॉन्ग होती है।
एंड दे हैव मैनी ट्रिब्यूटरीज। इनमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी होती है किसी भी एक कोई लॉन्ग रिवर होती है, उससे छोटी छोटी जो है वो धाराओं के रूप में, स्ट्रीम्स के रूप में जो छोटी छोटी उनकी ब्रांचेस निकलती है पानी की, दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। वो ट्रिब्यूटरी होती है। जैसे कि इंडिया में मेन जो 3 हैं, नॉर्थ में हम देखेंगे, अगर हम नदर्न की बात करें या हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ओनली 3 हिमालयन रिवर्स आर मेन। यहाँ पे देखिए मेरा लास्ट पॉइंट भी है, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। 3 rivers are the main rivers of India, नदर्न इंडिया। और इसके अलावा जो भी और अदर जो है हमारी रिवर्स हैं जो हम नदर्न में देखते हैं, दे ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दीज रिवर्स। इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं वो। बाकी 3 मेन रिवर्स हैं जो हिमालयन रिवर्स में आती हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगी इंदस रिवर। अब इंदस रिवर आप देखेंगे तो ये देखिए हिमालय से निकलती है इस तरीके से, हमारी इंदस रिवर यहाँ से निकलते हुए, और ये देखिए यहाँ से होते हुए, और ये हमारी यहाँ पर हमारा क्या है, बे ऑफ अरेबियन सी। ये हमारी अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, फॉल हो जाती है। ठीक है, तो दिस रिवर इज इंदस। ये हमारी फर्स्ट हिमालयन रिवर है। द सेकेंड इज गंगा। ये देखिए हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आप लोगों ने सुना होगा गंगोत्री। यहाँ से देखिए ये हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है, यहाँ से होते हुए यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में ये हुगली रिवर बन जाती है, और ऐसे करते हुए ये हमारी बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है। बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है। And this is the Ganga river. You know, Yamuna is also the tributary of Ganga. जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, वो गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। यमुना इज नॉट अ सिंगल, दिस इज यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये हमारी गंगा रिवर हो गई, जो ये भी हिमालय से निकलती है, ये इस जगह से। एंड द थर्ड इज ब्रह्मपुत्र फ्रॉम चाइना। ये यहाँ से देखिए चाइना से होते हुए, और ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करती है, और इंडिया में ये देखिए यहाँ से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए ये गंगा से मिलती हुई ये भी बे ऑफ बंगाल में जाती है, और यहाँ पर आकर ये जब यहाँ दोनों मिलती हैं, यहाँ पर एक ये सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। And this is the Brahmaputra. Brahmaputra river. ठीक है, so these 3 rivers are the Himalayan rivers. The first is Indus river, second is Ganga river, and the third is Brahmaputra river. तो ये 3 हमारी हिमालयन रिवर्स है जो कि हमारी 3 साइड से निकलती हैं, और जो हमारी इंदस है वो अरेबियन सी में, और जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है वो दोनों बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, फॉल्स करती है। तो अब ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि ओरिजिनेट होकर कहाँ पर फॉल कर रही है। तो दिस रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये ड्रेनेज सिस्टम इंदस रिवर का है, दिस ड्रेनेज सिस्टम इज ऑफ गंगा, एंड दिस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसी के साथ एक और लास्ट है, रिवर सिस्टम क्या होता है। जब भी कोई रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, अब जैसे कि इंदस है, इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यहाँ से इंदस की ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, जिसमें सतलज और सोन, बेतवा, बहुत सारी से यहाँ पर हैं। ये मैं आपको अगले अपने वीडियो में बताऊंगी, और इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, क्योंकि एक साथ सारा कुछ बताने में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसकी भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी आपको क्लियर करूंगी। बट ये जो रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी होती है, ये टुगेदर जो होती है वो क्या कहलाती है, रिवर सिस्टम बोलते हैं इसको। तो आज हमने आपसे को पढ़ाया ड्रेनेज क्या है, द रिवर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज एंड द ड्रेनेज बेसिन। जब स्ट्रीम्स कई डायरेक्शन से मिलती हैं एक मेन रिवर में, वो बेसिन कहलाती है, और उसके बाद जो वो बेसिन होता है एट लास्ट वो ड्रेन करता है इनटू अ ओशन या लेक में। एंड देन व्हाट इज वाटर डिवाइड, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हमने इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा किस तरह से 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स।
आज हमने आपको हिमालयन रिवर्स में बताया कि हिमालयन रिवर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पेरेनियल कहलाती है, ओरिजिनेट होती है नॉर्थ हिमालयन रेंजेस से। दे डेवलप्ड अक्रॉस, दे टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड, दे आर वेरी लॉन्ग, दे हैव वेरी मेनी ट्रिब्यूटरीज and the main Himalayan rivers are the Ganga, the Indus and the Brahmaputra. And in my next video I will explain you in brief the Indus, the Ganga and the Brahmaputra and their tributaries also. That's all for today. Thank you. Have a nice day.